Kishorda is here. Okay, good evening, everyone, and welcome to Passion Talks, a forum wherein we invite every Saturday 8 p.m. people from different walks of and other activities. So it's always good to be here. So today we have a very special guest, a close friend of ours, Mahendra. And what links me with him is that we both come from a Fauji background. It's just that Mahendra is more Fauji because he's been born and brought up in a Fauji thing. I joined the army later on, so that way he's more Fauji, and that way he's more spirited because the kind of things he has faced in life is much more than we can generally imagine. And what we have done is more on adventure side. What he has done is daily struggle, and the kind of stories he has, very very inspiring. Everyone that you have chosen to be here, Mahendra, for joining us. Over to you. Please share your journey. We are all so very eager to hear from you. Thank you, Roman. Thank you. First of all, good evening, everyone, and Jai Hind. My name is Mahendra Singh Raghuvanshi, and I, as Roman sir told, a Fauji background. So I live in Mahu, which is a Kent area near Indore, Madhya Pradesh. My father was in army, and he retired in 2007. On family front, my mother, who lives with us, is a homemaker, and I married in 2017 and blessed with a baby girl she's 14 months old, just like me. Oh, wow. Wonderful. On education front, I pass out from Kendriya Vidyalaya Mahu. So that is a hardcore school for every फौजी बंदा Fauji. क्योंकि हर जगह कैंट में केवी मिलना फिक्स है. So I Correct. also part of KV, and I pass out from school in 2005. Then later on, I'm just doing some courses, and in 2007, things which happened with me changed my life. Actually, at that time I was in college and preparing for army because it's a being an आर्मी ब्राइट. सो एक हर किसी का एक ड्रीम रहता है कि आर्मी ज्वाइन करना. Of course. एंड मैं टेन्योर में रह रहा हूँ महू में, सर एवरी पूरा वो और ही पूरा आर्मी पर्सन का है. तो आई ऑल्सो हैड अ ड्रीम टू जॉइन द आर्मी, and I'm preparing for that. I took the NCC in my college and preparing for Mahinder, I think we've lost you. Guys, I think we've lost Mahinder. Some network issues, yes. So, Mahinder, Mahinder, can you hear us? Just give a thumbs up if you're able to hear because we are not able to see you neither in my terminal or the other one. Yes, yes. Some network. Mahinder, we have lost anything. We are not getting your voice and video. Some issue. Can you try changing the network? Because once we tried that in the trial part, so just try that. Mm, Just give me a yeah, now it's clear, I think. Yeah, Mahinder, now you are visible. hello. Yeah, Mahinder, go ahead. Now Yeah, fine. is it fine? Yeah, perfect. So yeah. So when I lost the connection, can you please Yeah. So you were there at help me to 2000, recall? 2007. No, recording is going on. 2007, we were there. Once you said Yeah, after schooling, yeah. preparing and all. At that time, actually, I had a dream to join the army, which has been as a dream only. So Right. the my plan to join करने का army वो has been vanished just because one road traffic accident that changed my entire life. Yeah, and luckily I survived and currently in front of you and talking. Otherwise, Yes.
We are so ऊपर happy गए you survived, सेटल हो we're चुके going to. होते. Correct. So tell us about Yeah. that, how it all So happened, actually, that journey and all. yeah. So actually, what happened? I was traveling from Mount to Indore in a local transport bus, public private transport bus, and Okay, suddenly, which is there is a place, Rao near Indore, bus met with an accident, jeep, just like a Rohit right. Chetty movies. I was in a bus, and then jeep has been collapsed with the bus. At that time, I was in last seat of the bus, and suddenly I felt the jerk and nothing else. Oh Later my on, God. I came to know when came to in that unconsciousness. I just opened my eyes and I saw what I am the beneath of the bus, Well, and people are shouting and running from here to there, and I'm just like in this position, बस के नीचे बढ़िया तरीके से लेटे हैं. And suddenly I heard a loud on louder note of one guy, and he's shouting very on higher note, बोले मुझे लेके चलो, मुझे okay, लेके चलो, मैं मर जाऊँ. And what happened, he suddenly fell and did not rise again. And later I came to oh, know that the person had been converted in casualty. okay, The incident happened at 16th September 2007, and I got so much time to be there in that scenario, and people rescued me at 10:30. Till that time, I was beneath the bus. Actually, it happens with everyone. If suppose any incident happened in front of us as a being a human being, what we thought we can survive, people who they have the chances of survival to correct, if compared with the casualty. So same case correct. मेरे साथ भी था, but later on one person came to me and checking me whether I am not, and he thought I'm not alive, and suddenly he starts going back. So I just माइंड में इतना ही आया कि मैंने नहीं यार भाई अभी यदि ताकत नहीं दिखाई तो मैंने आज खत्म. So with all my courage, I just because एक लेफ्ट हैंड मेरा ऑलरेडी दब चुका था, तो राइट हैंड और इस सर के इंजरी की वजह से कुछ मेरा मूवमेंट नहीं कर रहा था. सडनली ऊपर वाले का करम रहा कि मैंने पूरा तो हल्का सा मूवमेंट करा, एंड दैट गाय नोटिस दोस थिंग, Okay, and everyone came to me, and those people just raised the bus and मुझे बाहर निकाला, and they were just talking. I just heard बोले चलो उसको भी सरकारी अस्पताल लेके चलते हैं. So at that time I told them, uh, surprise was that my mobile is still in my pocket. I told them this is my family number. मैं अच्छे घर से सक्षम हूँ, आप मुझे अच्छे अस्पताल ले चलिए. I'm just wow, informing those guys. Yeah. correct. And now already, actually, I did not get the opportunity to serve through ambulance. So they took me in a regular bus and just they laid me in the center wala part of bus, and they rotate one road due to injury. Okay, And what happened? Raise my leg and it is fallen apart. At that oh, moment, I just clicked in my head. मैंने या पैर तो गया, मैंने अब नहीं हो सकता इसका कुछ, जिस कंडीशन में यदि उल्टा हो गया है, जैसे भूत का बोलते हो पैर उल्टा हो जाता है, तो वैसा मेरा हो गया था सीन. सो एट दैट मोमेंट आई एक्सेप्ट दो दैट पॉइंट एंड गोस टू हॉस्पिटल. Later on, the first surgery happened, and the doctor has just cutted my and converted me as an amputee, a new journey, a new rise. And in morning, doctor told me, "बोले बेटा, sorry to you, आपका पैर नहीं बचा पाए." मैंने it is fine sir, मैंने आई एम एक्सेप्टिंग इट. एंड सेकंड ही टोल्ड मी, बट बेटा तुम बच्चे हो, यू आर लकी इनफ कि इतनी इंजरीज के साथ तुम बच कैसे गए. मैंने सर शायद से विलिंग right. ज्यादा है जीने की, बहुत सारी बची चीजें. What happened at that note? The doctor told me, "बोले your head injury." Actually, मैं गजनी से पहले गजनी बन चुका हूँ. I had 22 stitches in my head, and hardly a half centimeter यदि वो थोड़ा सा पीछे होता तो बोलते हैं जो मेन ब्रेन है
वो डैमेज हो जाता तो रीजन नहीं था कुछ भी, क्या सर्वाइव कर सकता. सेकंड इज जस्ट ऑन माय लेफ्ट लेग नियर टेस्टिसाइल्स, some part of iron rod has been goes inside my leg, and it is just a millimeter gap from my testicles. Otherwise, those also burst. Second and third one, iron rod, rusted iron rod has been put in my stomach. It Oh, is hardly hardly few inches, only not inches in a centimeter away from the liver. All those things happen, but बाकी सब ठीक है चलता है. oh, And next day I moved to another hospital. Next day I right, moved from my first initial operation done in Choitram Hospital, which is very known in Indore. And because MH at that time denied to treat me because my location is far away from the MH. So oh, MH is in coordination with, yeah. So they were doing everything. They asked what is the pulse of mine. If they are willing to shift me, but they wish to know my pulse to treat in MH. So correct. doctor told me, and my pulse currently at that is on three, Hi? on three. Yeah, Oh, hell. on. So doctor told at that time, Colonel Dixit, who is a surgical specialist in Mahu MH. Well, Okay, it's better is a treatment we go on in Indore only. The next day, right, first day, operation, first amputation has been done. The next day, further two or more operation has been done at Bombay Hospital. Of right, as I told you, my pelvis has been broken and the rod has been done, put it inside. अच्छा बेस्ट पार्ट अब चोइथराम से बॉम्बे हॉस्पिटल की दूरी है ऑलमोस्ट 14 kilometers. And at that time 2007 roads are not good if we compare from nowadays. correct. And department just put it me in the ambulance with the broken pelvis with one ice pack. एंड वो जर्नी 14 किलोमीटर की लाइफ में कभी नहीं भूल सकता. जैसे ऐसी लाइक जहां गड्ढा आ रहा था एंड रोड कंडीशन इज वर्स्ट. I know. मैंने पूरी ताकत से किसी बैट मारा मेरी कमर पे एंड विद दैट पेन आई ट्रैवल्ड 14 kilometers. Then suddenly, just and I reached to Bombay Hospital. Doctor, they already aligned all those things. I just took me directly to the OT. And first of all, they performed the operation and put it the rod in my pelvis. Now, second part is also start. Actually, in that tenure, my father was injured as a battle casualty in Oh, 28 June 2007. Yeah, and while actually he's on totally on bed, and just because of my incident, he walked a while and just स्टेज यूज करे तो उनका भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम आ गया, सॉरी स्पाइन का प्रॉब्लम आ गया. So in Bombay right. Hospital, the doctor who operated me earlier, then second patient is my father for the doctor. Oh, Yeah. So both are in one private room. Actually, my father was hit in Kashmir Valley in Kupwara. There are so many injuries. Currently, five bullets has been hit to him, and two are currently in his body. One is near oh, liver, and wow. second in his, yeah. So his proverb now is, "It is my real medal, which with whom I am living now." No, no, amazing. I would like to And tell everyone, all those who have joined late, that Mahinder is again a proud son of a Fauji family. So that's why I was referring, he's more Fauji than me because he's born in such a great family of, people who have contributed so much for the country. So it's a privilege not just for Mahinder, but then for us also to be, connecting with him and the family asset. So great. But tell me this, Mahinder, जब आपका एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद आप बस के नीचे जब पहुंच गए तो आपको बीच में अंदाजा नहीं आया कि जब एक बार झटका लगा सीट के पीछे थे और जब होश आया तो उसके बाद बस के नीचे पहुंच गया तो बीच का कुछ सारा लॉस्ट रहा बीच में क्या हुआ totally back out, totally back out. माय गॉड बिकॉज Actually, I lost my voice for almost 8 months.
due to head injury. I've lost permanently my hearing of 30% from right ear. Okay. Yeah. Due बट to देन head इट्स अ injury, मिरेकल कि it is आप जिंदा बच गए, यही मतलब अजूबा ही है जैसे आप बता रहे हैं, बिकॉज इट्स यू नीड लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन टू बी अलाइव इन सच सिनेरियो, यू नो, वंस एवरीबॉडी एल्स थिंक्स कि आप मर गए और आपको वहां पे छोड़ दिया, जो बच सकते हैं उनको पहले बचाया जाए, व्हिच आई मीन नॉर्मल टेंडेंसी वही रहती है, तो वहां से भी यू हैव द स्पिरिट टू thank फाइट God. एंड देन सर्वाइव. I mean, it's too unbelievable for anyone to understand, not just for us, but then anyone who is listening right now live or would listen on YouTube. So it's a great achievement to just survive, you know, not just कि कुछ करना is a secondary thing, but बचना, and you know, I'm hardly seeing कुछ बचा है आपका, जैसे बता रहे हेयरिंग भी उड़ गया था, ये भी, तो कैसे मतलब इतना सब कुछ आपने सह पाए. देखिए, एक चीज, as a being a sports person, I already played two nationals pre-accident from the KV. I two in kabaddi Oh wow. and handball में लेवल एंड क्रिकेट में क्लस्टर लेवल ऑलरेडी मैंने खेल रखा था. सो एक स्पोर्ट्समैन की सबसे बड़ी पॉइंट क्या रहता है, यू हैव टू एक्ट एज पर द सिचुएशन, एक्ट Yeah. अकॉर्डिंगली, Correct. एंड इफ यू लूज द पेशेंस, आई एम that's not recalling the exact word, presence of mind to act on the right time in the right manner. If you Absolutely. saw, if you saw, वेरी छोटा एग्जांपल है, करंट में आज मेजर एक्सीडेंट्स रोड पे होते हैं, बाइक के वो होते इस वजह से नहीं होते वो ओवर स्पीडिंग था या गलत ड्राइव कर रहे थे, वो इसके लिए होते कि उस टाइम पे उनका जो माइंड को रिएक्ट करना था वो उस पैटर्न में रिएक्ट नहीं कर पाए, एंड Absolutely. वो कन्वर्ट हो गया एक्सीडेंट के अंदर. या तो दैट इज अ मेजर पार्ट. Great. सो अब वो था उसके अंदर उस टाइम पे वो चीज करी, एंड ऊपर वाले के जैसे मैंने आपको बता ही रहा था कि कई बार होता है लाइफ में एक ऐसी अद्भुत, देखो आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन गॉड, सो एक सर्टेन टाइम पे ऐसा होता है, एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर ब्रेन. Correct. वो एक जो बोलते हैं ना लास्ट पुश, इतना मैं कर रहा कर लिया, बट एक जो बोलते हैं लास्ट मोमेंट, यदि कोई भी एक दीपक बुझने से पहले एकदम भभकता बहुत तेज से है, एक Very लास्ट true. बम निकला था मेरा भी, एंड नोटिस्ड नहीं नहीं, अपना दैट्स वो सर्वाइवल अमेजिंग. इंस्टिंक्ट आ ही गया था. बिल्कुल, आई मीन ये अजूबा ही है, बिकॉज बट देन यू नो वंस यू आर फाइटिंग यू हैव सच इंस्पिरेशन एट होम, यू नो, अ फादर हु हैज बीन इन वॉर, गोलियां खाई हुई हैं, तो यू डोंट हैव टू लुक एनीवेयर एल्स फॉर इंस्पिरेशन. और दैट्स अमेजिंग. नहीं हुआ उनको एग्जैक्टली जून, सिर्फ 90 दिन पहले उनके साथ इंसिडेंट हुआ है, और रिटायरमेंट के ओह. 2 दिन पहले was retired ओह. on 30th of June and on 28th June. On records, he retired, but just to meet his Paltan mates, he goes to the Paltan. राइट. So ग्रेट. it's part life. Currently, हम हूँ साथ में हूँ. Chance to interact with you. नो नो, दैट्स So later ग्रेट. on, महेंद्र, ये बताओ उसके बाद की जर्नी पे, एक होता है सर्वाइवल, आपने सर्वाइवल को yeah. पीछे छोड़ के इतना सब कुछ, जैसे स्टार्टिंग विद क्रिकेट वगैरह, उसकी वो वाली जर्नी के बारे में आप बताइए, जहां से आपने फाइटिंग स्टार्ट किया, फिर कि यहाँ कुछ करना है. So post accident, I took almost firstly initially I took 3 months, 3 to 4 months because to stand again on crutches, new normal, राइट. new राइट. normal. Later on, I start practicing for physiotherapy on all those things, and first of all I went to ALC Artificial Limb Center Pune, which is Asia's biggest limb center, run by our Indian करेक्ट. Army. एट दैट मैं वहां पे मेरा प्रोस्टेट आर्टिफिशियल लिम्ब फिटेड हुआ, एंड उसके बाद से फिर जर्नी स्टार्ट हुई, बट इट टुक टाइम. इट इज नॉट करेक्ट. कप ऑफ टी टू वियर अ प्रोस्टेटिक एंड स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, बिकॉज लगता भी है, हर्ट भी करता है, मार्क्स भी आते हैं, वुंड्स भी होता है, बट यू आई एम हैव श्योर. टू विद ऑल गो अहेड. सो ऑलमोस्ट 2 साल 2009 तक मेरे को उन सब चीजों के साथ मैं हैबिचुअल हुआ एंड स्टार्ट करा आगे.
At that time, since I told कि जो first priority थी army की वो तो जा चुके थे and I have to accept all those things and started a new life with new Right. goals. So later on, already cricket खेलता ही था and you know what, एक taboo वाला part I also felt that thing. Proud Indian. Our society is not open as such much for these special needs people. Right. That thing I faced even with my closest friend as well. So जब चीज मेरे साथ भी हुई, I post accident I just बहुत बड़ा ग्राउंड है घर के पास, I just go to in the ground and stand there to play cricket, but they are not willing to took me in their team and to participate me. Once a day, I luckily in 2011 I got the chance due to unavailability of one player. So they just Right. look at me with the sympathy, मतलब कि आप क्या कर पाओगे, आप ठीक है खड़े हो जाए यहाँ पे पास में पॉइंट पे, जस्ट एज अ फॉर्मली 11 बंदे खेल रहे हैं. सो Right. आई जस्ट अ पार्ट 11 में होने के बाद में 12 में नहीं था. देन ठीक, from that day it started, I start playing cricket again and again again. One day I got the opportunity because entire team has been outed and I'm the last player who have to bat. Wonderful. बढ़िया. Yeah. Yeah. So I'm left-handed batsman as well as bowler. So at that time, they need a team around 8 runs in 6 balls. First of all, they thought, they started collecting money. We lost the match, खत्म हो गया. and हाँ. later on, because they don't trust me, Right. and luckily I converted the match. From that day in 2011, my journey starts again of cricket. I start Cricket. exploring about cricket of physical, and I came to know in 2012 there is a Divyang cricket also happens in India, and there is a team of Right. MP as well. Right. Meantime, I post accident. I just first of all I completed my graduation, and later on I did my MBA in operations management. So which was Wow. completed in 2013. In 2012, yeah. So in 2012, I joined Cummins India, which is an automotive industry, and start वर्किंग इन ऑटोमेटिक सेक्टर. देखो एक ड्रीम यही था कि देखो यदि गवर्नमेंट जॉब तो नहीं करनी, प्राइवेट फील्ड में काम करना है तो उस फील्ड में जहाँ पैशन है. सो आई लव Nice. मशीनरीज. अच्छा. I start working with Cummins and let Okay. you know, yeah, about cricket, and I found details, and as well as I connected with PCO, the Challenging Worlds NGO, which run by Major VP Singh, DP Singh. the Blade हाँ. Runner of India. Right. Right. Yeah. Chance I in 2014 I got chance to meet you personally in Hyderabad 5K marathon. Wonderful. TCO. Yeah. So move ahead. Yeah. So 2012 I started playing cricket, and in conversation with the selectors, they told me once whenever the tournament happens and whenever they need a new players, they call me. So ये 10 years चलते चलते अब मैं फीडबैक ले रहा हूँ, फॉलोअप ले रहा हूँ, और 3 साल निकल गए. Okay. 3 साल निकल गए. In 2015 they called me. Well, yeah, for the tournament we are planning for the trials of the new players for Madhya Pradesh team. I was surprised, Okay. but just like goosebumps happened. हाँ. Yeah. So they called me January 2015. I went to Gwalior. Okay. They conducted the trial in Gwalior, and best part of that journey is I lost my mobile, I lost my purse, and every stuff in. Sorry, I lost my mobile of Sony Ericsson Oh. in Indore. Yeah. No worry, I don't have any contact number, nothing else. हाँ. I just went to God, sitting outside the railway station. And माइंड में मुझे वही प्रोसेस आ रहा है कि देखो मैं अकेला नहीं, दूसरे भी आए होंगे और एथलीट का एक अटायर बता देगा. सो सेम चीज हुआ. हाँ. मैंने ऑलमोस्ट 4 घंटे बैठने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा है, तो वो मुझे लेके गए एंड आई गेव दी ट्रायल्स. अच्छा, उसके पहले ये 3 साल मैंने क्रिकेट खेला है, बट वो क्रिकेट जो अच्छा. खेला मैंने वो नॉर्मल लोगों के साथ में खेला है. एंड एट दैट Right. टाइम आई वाज फेमस इन इंटायर महू रीजन, स्पेशली इन नाइट टूर्नामेंट्स. Right. एंड वन टाइम खड़े भी हो गए बहुत बार कि बोले यार ये बंदा चीटिंग, 2 कदम से इतनी तेज बॉल डालना पॉसिबल नहीं किसी के लिए, ये थ्रो फिट है. Great.
From that journey 2015 तक यहाँ पे आया. There are so many senior peoples available at that time, and Right. they thought बोले ठीक है, just got the instruction from the authorities. अच्छा, Divyang cricket is since 1988 in India, which run by Okay. late Ajit Wadekar sir ji. Okay. या सो उस टाइम पे जब मेरा फर्स्ट टाइम ट्रायल्स हुआ तो आई जस्ट हर्ड द कॉन्वर्सेशन ऑफ द सिलेक्टर्स एंड द मैनेजर ऑफ द एमपीटी. बोले ठीक है यार, बोले बंदा अच्छा है, बोले खेलने में लेके चलते देखते हैं. तो अपन बिल्कुल क्लाउड 9 पे आ चुके थे. देन टूर्नामेंट फरवरी में हुआ बरेली, और बरेली Okay. की ठंड यूपी वाली ऑल नोज वेरी वेल. Time I Right. went to the Bareilly for the tournament first time, and in the tournament people were just not मेरा तो भाई ठिकाना नहीं था खुशी का. मेरे को मौका मिल गया, राइट प्लेटफॉर्म मिल गया खेलने का. बट एट Correct. दैट टाइम दे पीपल स्टार्टेड शाउटिंग, इधर आ. मैंने ठीक है, जब मैंने वो सीनियर्स ने बोला है तो मैंने सुनना पड़ेगा. इन टूर्नामेंट जब पहली बार बॉल डालने का मौका मिला तो लिटरली जस्ट लाइक ऐसा, यदि कोई ऑफिसर कमीशन होता है जब उसको उसके फीती लगती है, जो हैप्पीनेस होती है, वही खुशी मेरे हाथ में थी जब बॉल हाथ में आई तो कि नाउ इट्स माय Wow. टाइम. Right. अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट कंट्रोल माय स्विंग एट दैट टाइम. मतलब मैं स्टंप पे बॉल डाल रहा था तो वाइड के भी बाहर, क्रीज के मतलब पिच के बाहर बॉल जा रही थी मेरी. तो सीनियर पर्सन बोले इसको, बोले समटाइम्स हैपन, तो बोले इसको इस पैटर्न में ग्रिप करो. तो देन आई कंट्रोल माय स्विंग, एंड लेटर on second ball I bowled it the person who scored 50 runs in previous match, and he Nice. was just going from the ground and saying बोले क्या करके in that tune. मैंने जब हैप्पी, मैंने उसका हाथ जोड़ा, मैंने भाई सॉरी. एक जो बोलते हैं, एक स्लैंग चलता है क्रिकेट के अंदर, Uh, तो मैंने भाई सॉरी, ठीक है चल. अगेन दैट, अब सबसे बड़ा टेरर क्या बन गया था इन दैट टूर्नामेंट के, बोले यार इससे एलबी से बच के रहना, इसकी बॉल पे ये पूरा बिल्कुल ब्लॉक नहीं अच्छा. मारेगा. एंड कितने ही बचने के, एक बार आप डिफेंस छूट जाता है एंड वो मैं वहां हिट कर जाता था. तो ऐसी टेन्योर चला, 4 मैचेस खेले थे एंड वी गॉट द टाइम, वी आर इन फाइनल्स अगेंस्ट द यूपी. एंड Wonderful. अनफॉर्चुनेटली आवर टीम स्कोर इन फाइनल, इन 12 ओवर्स मैच वी स्कोर ओनली 60 रन्स. Okay. एंड एक बॉलर को 3 ओवर, या एक बॉलर को 3 ओवर की लिमिट थी, एंड दे स्कोर ऑलमोस्ट, मेरा मेरा एक ओवर हो चुका था पहले एंड 2 ओवर्स रिमेनिंग टिल 8 ओवर. दे स्कोर 48 रन्स, एंड एक बैट्समैन उनका ऑलरेडी 48 रन्स के अंदर 30 पे खेल रहा है. एट दैट टाइम आई टोल्ड देम, कैप्टन आई नीड अ बॉल, बिकॉज मेरा ओवर बचा के आप कुछ नहीं कर सकते यदि आपने अभी इनको नहीं रोका तो. आई बोल्ड 9th ओवर एंड फर्स्ट बॉल that is in who scored only 30 runs in that kind of defense. भाई तू कुछ भी कर ले, मेरे को मत कर बस. उस लेवल डिफेंस में हुआ था. एक बॉल हुआ, हाँ. 2 बॉल हुआ, 3 बॉल हुआ. नाउ मैंने बेटर है कि मैंने, इफ यू आर इन हार्डकोर डिफेंस देन आई कैन नॉट break your defense, so it would be better I will give you a chance to hit me. And हाँ. same thing मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ, उसने करा और आउट हो गया. And that over is made in, मतलब 9th ओवर निकलेगा 48 runs. So they lost their confidence. Then again, same third person also bowled very well, and again I bowled 11th over because actually I don't want to wait myself because of last thing. मैं बोलूँ पहले better खत्म हो कि जाएगा. हमको पहले ही खत्म कर देते हैं. Right. पहले ही खत्म कर देते हैं. And luckily all of them, I took 3 wickets in that 11th over, and उनकी team all out हो गई. At that time I got the award of man of the series. अरे वाह. Later on that post performance, I selected for the zonal team. In zonal also, I did not perform on that mark level, but on my Okay. skill, on my ball, I got called first time directly for India team. Wow. ये जर्नी जनवरी से स्टार्ट, जून में मेरे पास इंडिया टीम का कॉल आ चुका था. गजब. And when I went for India team camp trials in July to Mumbai. Okay. People were saying to me, बोले बंदा है
है कौन, दे आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज, बिकॉज पहली बार तो देखा ही नहीं किसी ने, और पहली बार मैं आके बैठा किसमें, इंडिया टीम के कैंप के अंदर, तो दे आर हाँ सरप्राइज कि बोले है कौन ही बंदा आज। पर जब एंड में हमेशा किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा सीनियर्स को मिलती है। सेम मेरे राइट साथ हुआ, मैं शिकार हुआ उस टाइम पे। लेटर ऑन जब सब ने डाल के खद्दा ट्रायल दे दिया, तो उनने बोला कोई बच्चा है कि, मैंने सर मैं बच्चा हूँ, मैं बच्चा हूँ। सो दे स्टार्टेड माय ट्रायल्स एंड दे शॉक्ड, बोले यार, बोले तू, बोले स्पिन है, फास्ट है क्या, मैंने नहीं, मतलब जनरल, मतलब मीडियम पेस आता हूँ। बोले इसको मीडियम पेस बोलते हैं, हाँ हमारे जो पेसर थे, वो नहीं डाल रहे थे तेज। पेसर एक्चुअली जो पर्सन हु हैव टू ओरिजिनल लेग्स, उसका पेस नहीं, बोले जो कदम से कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, नथिंग, राइट बॉल डाल रहा हूँ आपके सामने घुमा के, नथिंग एल्स, इतना पेस का। मैंने सर एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैंने बहुत टाइम, मैंने 2012 से डेली के पुशअप्स मारता हूँ मैं, इसके अलावा कुछ और भी नहीं है, मैंने एक्सरसाइज नथिंग एल्स, ओनली कार्डियो। बोला हाँ चल डाल। देन अगेन दे, बोले अच्छा बॉल, बोले ये वाला बॉल रिपीट करके दिखा सकता है, बोले ऐसे जो तेरा मिडिल में डाला था और स्विंग होके बाहर निकला। मैंने हाँ, इसमें क्या है, वो चीज हुई, वो हुई। देन दे इम्प्रेस्ड सो मच ड्यू टू माय डिसिप्लिन ओनली, राइट डिसिप्लिन। They told me they have to bowl almost 9 to 10 dealers on same area region. I did that thing. They impressed and they finally called me for the India team, which is going to Bangladesh in September for the four international tournament, which organized by Red Cross Society, where apart from India, Pakistan, England, Afghanistan, and Bangladesh are also participants in the tournament. ग्रेट है। Yeah. So ये जर्नी तो 15 में अंदर फिर इतना जल्दी मैं इतना सब गया। कुछ जब रहा तो फिर कैसा रहा, मतलब फीलिंग वगैरह, बिकॉज जनवरी तक आपको मौका नहीं मिला, उसके बाद सीधा नेशनल टीम में, तो हाउ वाज दैट, मतलब इतना जल्दी सब कुछ आ गया। वही एक्चुअली आई थॉट मिरेकल हैपेंस। एब्सोल्युटली, यू नो, कुडंट हैव बीन मोर एप्ट फॉर दैट। वो जो फीलिंग था, एक्चुअली आई वाज ट्रैवलिंग इन बस फ्रॉम ढाका एयरपोर्ट टू स्टेडियम एंड एस्कॉर्टेड बाय द पुलिस। और सही बात गूज़बम्प थे, है। मैंने हो रहा है, वो चीज फील करी, वो एक उसका एक अलग ही लेवल है। राइट लेटर ऑन वहाँ पे इंडिया टीम का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा था, वी लॉस्ट बिकॉज हमारा जो कैंप था मुंबई में, इट इज वैनिश ड्यू टू मुंबई रेन्स, एंड ओहो हमें चांस नहीं मिला था इतना अच्छा किया। So later on, ठीक है, we came with the learning, new learnings and other things. And करेक्ट। in 16, तो यहाँ तक का क्रिकेट का जर्नी था, बट आई कंटिन्यू टू प्ले, बट ऐसा मेजर मेरा अचीवमेंट नहीं था। फिर वो रेगुलर हो गया था मेरे लिए खेलना। राइट। अच्छा ये बताओ, क्रिकेट Yeah. का तो ठीक है, cricket के बाद how did you think of doing other things, you know, because as we see you have done motorcycle, अब जैसे मोटरसाइकिल भी होती है तो generally people would go for a 100 cc या फिर 150 cc maximum, you chose बुलेट में भी फिर आपने राइड किया यहाँ से लेके मऊ से लेके, आई मीन इंदौर मऊ एमपी में, वहां से लेके लेह लद्दाख रिकॉर्ड बनाया, व्हाट वाज दैट मोटिवेशन बिहाइंड कि भाई बुलेट ही लेनी है और इतना चलाना विद द काइंड ऑफ लेग यू हैव, बिकॉज इट्स नॉट इजी ऑफ कोर्स। बुलेट से पहले मेरे पास ऑलरेडी पल्सर, मेरे पास बुलेट से पहले पल्सर थी। अच्छा So I rode pulsar for almost 6 years, ओके 6 to 7 years, and एक बाइकिंग का पैशन आई थिंक जो आज की जनरेशन सब में रहता है, and everybody have a few destinations in their mind. Whenever I bought my dream bike, then I definitely I will go there. राइट Same thing happens. Yeah. So bullet आज के टाइम पे, स्पेशली आज के टाइम पे दो ही ऑप्शन है, दो लोग के, या तो एक केटीएम लेना है या तो बुलेट लेनी है। आज वो इतनी कॉमन बाइक बन चुकी है मार्केट के अंदर। राइट तो मेरा भी, तो मैं प्लान करा बहुत उसके पीछे, एंड 3 जून 2016 को मैं लद्दाख के लिए निकला था मऊ से, एंड 18 मई को मैंने बाइक परचेस करी थी। ओ सही है। क्या यानी सब कुछ थी, फिर मैंने पहले प्लान था कि रेंटेड बाइक से करना है, वो उठा करेक्ट लेंगे, बट लेटर ऑन आई माइंड
if I am doing that thing by road, then why should I not didn't attempt for the Limca book? जो अच्छा. लिम्का बुक के डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो डॉक्यूमेंट जो मैं फुलफिल नहीं कर पा सकता था किसी और की बाइक से, बिकॉज वो और रेंटेड से, बिकॉज उसके अंदर जीपीएस भी चाहिए था, मेरे को लॉग्स मीटर मेंटेन करना था, so many ओके. documentation purpose. करेक्ट. So I decided it would be better कि I will purchase a new hardcore bike. So I bought राइट. a new bike and do all those things which are required as per the documentation process of Limca books. And the ट्रू. major part I did, currently I'm riding without any modification in bike. अमेजिंग. क्योंकि आपकी लेग भी जो है, जैसे मैंने देखा, आप अपना लेग दिखाएंगे इफ यू डोंट माइंड, बिकॉज दैट वाज अ वेरी Yeah, it's आर्टिस्टिक fine. आपने दिखाया था. नो, बिकॉज दिस इज नॉट अ So this नॉर्मल is my लेग व्हिच आई हैव सीन. नहीं है ये नॉर्मली ही, बट इसके ऊपर जो देख रहे हो ये आर्ट वर्क मेरी एक खुद की ऑटोबायोग्राफी कहता है. इट ऑल अबाउट मी, माय जर्नी सो फार. रोड है ये रोड दिखेगा जो माउंटेन्स में जाता है, जो मेरा एक प्यार राइट. है दूसरा माउंटेन्स. मेरी बुलेट खड़ी हुई है यहाँ पे एंड मैं साथ में हूँ विथ रक्सैक एंड एक हाथ में वेपन है जो करंट के अंदर है, मैं उसके ओ ऊपर भी ग्रेट. आऊंगा. या राइट. इस पैटर्न में जब मेरा भी पैशन था, जस्ट हर किसी का है, तो आई वो लद्दाख जाने का, तो आई बॉट अ बाइक जस्ट फॉर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड पर्पस एंड आई राइट. स्टार्टेड माय जर्नी. There are other people also of my friend group who joined from Delhi and took the rented bikes from Delhi. या राइट, बिकॉज जनरली ग्रुप में ही जाते हैं वैसे लोग जो जाते हैं वहां पे. So मैं महू से दिल्ली का मेरा सोलो वाला पॉइंट है एंड एक ओके. और आगे स्टार्ट करा था ग्रुप के अंदर. बट हमारे साथ कोई ऐसा एक बंदा नहीं था जो राइडर है और कोई हार्डकोर कम्युनिटी में ग्रुप के अंदर. वी आर टोटली अ न्यू पर्सन जिनको कुछ भी अरे नहीं वाह. पता है आपस ग्रुप राइड कैसे होती है. एक बंदा आगे जा रहा है, एक बंदा पीछे रह गया, एक बंदा अपनी गाड़ी चला रहा है, मैं क्विट कर रहा हूँ. वो तक चीजें हाँ. हुई. ठीक है, उसके साथ में अपने मूव करते गए करते गए करते गए. राइट. 6 बाइक मेरी मिला के 6 बाइक थी, 5 रेंटेड थी, मेरी पर्सनल थी. वी स्टार्टेड जर्नी एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स हैपेंड अकर्स. मेरे को छोड़ के मेरे साथ वाले सब गिरे. आई एम द ओनली पर्सन जिस पे आज मेरे को भी बड़ा प्राउड होता है इन ग्रुप में, जब जो फ्रेंड्स इनके साथ गया था. एक्चुअली एक उसमें से एक है ऑलरेडी कॉल के अंदर, मनीष. ओह. गिरे, मैं ही नहीं गिरा अकेला बस. एंड मैं उनको बड़ा गुस्से में, यार देख लो तुम्हारा तो अच्छे खास होते हुए भी गिर गया और मैं तो ऐसा होके भी मैं नहीं गिरा. तो मेरा एब्सोल्युटली. एक लेवल कॉन्शियसनेस, मतलब स्पोर्ट्स वाला या. पॉइंट इधर भी लागू होता है बाइकिंग के अंदर. आपको राइट. कॉन्शियसनेस हमेशा रखना है कि लास्ट मोमेंट पे आपका रिएक्शन पॉइंट कितनी जल्दी है. विद गॉड ग्रेस ट्रू दैट. राइड बहुत गई. आई कवर्ड खारदुंगला, पैंगोंग लेक, डे सिटी एंड कंप्लीट करके मैं रिटर्न आया माउंट तक. And after वाह. post the ride, I submitted the documents to Limca Book and very happy to share that ride currently is in Limca Books. वाह, अमेजिंग. क्योंकि मतलब नॉर्मल राइड करना यहाँ से वहां तक वापस आना. Yeah, as we always call it, ग्रेट जॉब. ये बताओ, उसके बाद फिर आप ये ईबीसी का कहाँ से salute to. भूत चढ़ गया? बिकॉज ईबीसी में जाना इज नॉट इजी एंड So जैसे विद दिस फुट. so 2016 में ये कर चुका था, रेगुलर लाइफ चली ही रही थी मेरी. 17 के अंदर एक्चुअली मैं क्रिकेट और टूर्नामेंट के लिए ही गया था, बट पोस्ट प्री द टूर्नामेंट 17 के अंदर ज्यादा कुछ नहीं. 17 में मेरी शादी हुई थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लाइफ में, तो उसके ओके. साथ में इन September 17 at that time I was going in morning for to washroom on crutch बैसाखी and एक जर्क आया गर्दन में. एंड एट दैट टाइम वो इतना ज्यादा था कि कुछ समझ में नहीं आया हुआ क्या है क्या नहीं हुआ है. देन लेटर ऑन विद फ्यू मेडिकेशन सम थिंग्स मैं टूर्नामेंट खेलने गया एंड सेम जग अकर्ड इन बैंगलोर. At that time, I was sitting on the bed and I just fell down. And I'm not in ओहो. state for a minute or while to bring my neck in a normal position.
and I was crying literally because I am not able to manage that pain. Obviously. Later on, with same, yeah, from Bangalore, I moved, went to Baroda for the cricket tournament. In that pain, I played. I can never forget. In that actually, मैं उस कंडीशन में मेरा हाथ उठ नहीं रहा था, मैंने टूर्नामेंट खेल के आया था. एंड लेटर ऑन जब रिटर्न आके मैंने ट्रीटमेंट दिखाया, डॉक्टर सीटी स्कैन एमआरआई, एंड डॉक्टर टोल्ड मी इन एमआरआई रिपोर्ट हैज बीन टेल देयर इज अ bulge in your C5 C6 and they advised me to not move your hand so much, and left is my master hand, and Correct. the bulge occurs on left side only. Yeah. So later on, actually I'm just taking medication for and the rest for 4 5 months because in between actually I was playing badminton. So Okay. later on, once डॉक्टर मैंने कुछ सेटलमेंट हो चुका था, मेरा एक फ्रेंड है, इज आल्सो इन पैरा करंटली एंड ही Okay. इज डूइंग आर्मी फ्रंट. अरे वाह. या सो वो मेरा जूनियर स्कूल का जूनियर है एंड Okay. लिव्स नियर माय होम. सो ही टोल्ड मी, बोले भैया अबाउट क्या कहते हो उसके लिए. मैंने भाई रेडी है, मेडिकल रहा है, मैंने मेडिकल गर्दन के लिए चल रहा है, पैर के लिए तो मना नहीं करा है, तो मैंने अपन चल तो सकते हैं. क्रिकेट खेलना अरे बंद वाह. हुआ, बैडमिंटन बंद हुआ, चलना थोड़ी बंद हुआ, चलना तो चल. तो जो मेरे को टाइम मिला था बीच का कि इसके अंदर फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ सर्वाइकल दैट टेन्योर Right. कि मैंने एटलीस्ट सही टाइम में ब्रेक भी मिल रहा है, भी कर रहे हैं. तो इनिशियली वी प्लान फॉर द ईबीसी ओनली, Right. बट आज टफ लेवल तक सारा कैलकुलेटेड करा था कि मैंने सारे बुकिंग्स पहले कर रखी थी कि एटलीस्ट हमने बिल्कुल नेक टू नेक प्लान कर लिया एंड हमारी बुकिंग उसकी क्लैश हो जाए. एंड बेस्ट Okay. पार्ट इज वो चीज स्टार्ट दिल्ली से ही हो गई. मैं डिबोर्ड Okay. मैं डिबोर्ड हो गया बिकॉज आई फॉरगेट टू कैरी माई पासपोर्ट. ओहो. फिर कैसे मैनेज किया? सो लकीली चलिए मेरे फ्रेंड को बोला आप जस्ट मूव ऑन करिए, आई विल मैनेज. I just sitted there for almost 5 to 6 hours at airport. And it's time to move the things. And Indore, Delhi, ज़्यादा दूर है नहीं, तो I just connected with friends and came to know one of my friends is working in Indigo Airlines, and there is one flight Okay. in evening from Indore to Delhi. So उसके थ्रू पासपोर्ट मंगाया एंड मीनवाइल फिर मैंने एटलीस्ट एट दैट टाइम मैंने ऑलरेडी एयरलाइन से बात कर लिया था, दे एग्रीड, दे सपोर्टेड मी कि आपका ऑलरेडी बुकिंग है, तो उन्होंने नेक्स्ट डे की डेट के अंदर मेरे को बुकिंग दे दिया विद 50% चार्ज ओनली. Nice. सो आई वेंट, फाइनली बोर्डेड नेक्स्ट डे एंड रीच टू काठमांडू. वहां से स्टार्ट Right. हुआ फिर जर्नी मेन. उसमें भी लकीली हम बहुत थे बिकॉज आई केम टू नो देयर इज नो फ्लाइट शेड्यूल फ्रॉम लास्ट 3 days फ्रॉम काठमांडू टू लुकला. एंड यू नो वेरी वेल Right. वहां पे रडार सिस्टम नहीं चलता, वहां पे मौसम देख के बताते हैं आज प्लेन कुछ नहीं उड़ेगा होता. नहीं उड़ेगा, हाँ हाँ. अदरवाइज. बिल्कुल. तो उसमें बहुत लकीली थे हम. सेम फ्लाइट हमने शेड्यूल ऑलरेडी कर रखी थी. हम 3 घंटे Okay. लेट थे पर चलता है वो 3 4 घंटे, इट्स फाइन. काठमांडू टू लुकला हाँ. यू नो वेरी वेल. तो आई True. जस्ट वहां पे जाने के बाद ऑलरेडी मेडिटेशन का था ऑलरेडी. हमारे जो शेरपा थे वो ऑलरेडी लकीली जो मेरा फ्रेंड है और उनने साथ में माउंटेनिंग का कोर्स करा था. अच्छा. तो वी हैव अ म्यूचुअल फ्रेंड एंड वी डो नॉट डू एनी पोर्टर. ओ तेरी. विदाउट पोटरी चलते रहे. या अरे वाह. बिल्कुल. ग्रेट मैन. सो फर्स्ट वी स्टेड इन घाट. या घाट तक ही था मेरे पास एक्चुअली. एज सच प्रोफेशनल रक्सैक नहीं था. मेरा आर्मी वाला फ्रेंड का ही वो जो फौजी रक्सैक होता है वो आप देख सकते हैं, आपको यू नो वेरी वेल हाउ हाँ. बैड इट इज लिटरली कैरी ऑन द करेक्ट. माउंटेन्स. वही रक्सैक लेके गया मैं. Later on, I just meet one Indian guy who lives in Ghat only as a doing a very noble cause of education. ओके. Animesh Verma. He settled in Nepal and just doing a noble cause for the society. And he
when at a school there. So he gave me his rucksack, which is a very known branded company. उसको लेके फिर ऐसा लगा मैंने क्या जान में जाना है. Then I started बिल्कुल. again. हाँ. At, at that time, suddenly I started tingling feeling in my prosthetic, because actually there is one thing happens if suppose a distribution of weight is not proper in internally prosthetic, then it will give you sores, प्रेशर पॉइंट्स. एंड आई फेल्ट दैट थिंग कि मैंने ये स्टार्ट हो गया है मेरे साथ. और यदि वो हो Right. जाता उस टाइम पे तो मतलब मेरा पूरा ही कंडम था, पूरा ही टूट. इन दैट केस आई हैव टू जस्ट रिमूव माय प्रोस्थेटिक एंड जस्ट वेट फॉर 5 to 6 days कि वो जब तक ठीक नहीं होगा पहन नहीं सकते. तो उसमें ऑलरेडी माइंड तैयार था. तो आई बॉट सम सिलिकॉन जेल शीट्स व्हिच इज एडवाइज इन सम केसेस. यदि आपको यदि प्रेशर Okay. रिमूव करना है तो आप उसको स्किप से. तो मैंने वो पूरा टूर मतलब नामचे बाजार के नामचे बाजार ठीक बोचे तक मैंने वो स्टिक लगा ली थी. पूरे स्टिक के Right. साथ मूविंग ऑन टेक बोचे आई फील अगेन कि मैं अब मेरा आगे भी वो वुंड्स आना स्टार्ट हो गए. Rubber. मेरा प्रोस्थेटिक उस एडवांस लेवल का नहीं है कि जो मेरे को पूरा एक नॉर्मल प्रोस्थेटिक होता है जो मैं पहन रहा हूँ, सेकंड होता है सिलिकॉन का जिसके अंदर ये सारी Right. प्रॉब्लम्स होती है. तो आई जस्ट टिंगलिंग इन माय माइंड, मैंने ये स्टार्ट हो गया लगना. और यदि ये वुंड में कन्वर्ट हो गया तो नथिंग इज पॉसिबल. वो है तो एयरलिफ्ट ही कर Right. सकते हैं मेरे को. तो आई जस्ट पुट इट अगेन वन शीट ऑफ अनदर पॉइंट ऑफ माय लेग ऑफ सिलिकॉन ताकि मैं पहन सकूं, आगे चल सकूं. बट खुद का वेट उठा के चल रहे थे विदाउट पोर्टर. हाँ. एक सर्टेन टाइम के बाद ऐसी वी आर इन दैट कंडीशन कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ मेरे साथ वाले से, कुछ नहीं कर रहा हूँ. बट लेटर ऑन ठीक है, चलता रहा. जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है हरकतें बदलने स्टार्ट हो गई थी. Then when we reached Gorakshep, we planned in the same day to go EBC, and we trekked from Pyramid to Gorakshep at that day. And once we reached there, actually wounds are already there in my leg. I don't have any option what to do. And that is the only reason the pic which I have captured by my friend of EBC, one leg in one hand I have a prosthetic and second is a flag, national flag. Right. Because of the pain, I'm not in state to wear it, and I seated at EBC without prosthetic. जो मेरे से हो सकता था, जितना नॉलेज था ऐड करता चला गया कि मैंने इसको बढ़ा नहीं सकता. बढ़ा दिया तो मेरे लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है. अच्छा, मेरी जर्नी खत्म नहीं थी, जर्नी चल रही थी. देन आई ठीक है मैनेज करा एंड फिर वन डे रेस्ट करा गोरखशेप के अंदर ही. बिकॉज हम प्लान के अकॉर्डिंग जितना हमारी बुकिंग्स थी रिटर्न की उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एम्पल टाइम था currently because you also know very well in expedition we cannot plan for neck to neck. Micromanage नहीं हुआ था. Anything is possible. Right. We have also considered the buffer on that note. One day we had stayed in Gorakshep and next day we post for the Kala Bhattar. Right. ठीक है. At that time now I'm comfortable with my wound because मैंने एक दिन का रेस्ट दे दिया था and I have medicines. मैं मेडिसिन पूरी लेके गया था. So उसने हेल्प करा मेरे को. जो ना उसने there is one Neosporin powder comes, a magic powder. तो ब्लू कैप वाला. Correct. वो एक रामबाण का काम करता है वुंड्स के लिए. जो उतनी जल्दी हील करता है. एग्जैक्टली. सो वो एक पार्टनर है. वो उसको थोड़ा रिलीफ मिला. सो आई जस्ट स्टार्ट गोइंग बैक. Then at Tigboche, I think yes, Tigboche, we are just taking our meal of noon and just planning. मैंने यार वापस तो जाना ही है. मैंने हाँ बिल्कुल जाना ही है. Me, my friend and our शेरपा were discussing बोले जाना तो मतलब यार कुछ और अपने पास टाइम भी बहुत बचा हुआ है बुकिंग के अकॉर्डिंग. तो बोले कुछ और करते, चलो कुछ और करते, कोई दिक्कत नहीं. So from that we suddenly planned for the new route of 3 passes which cover Gorakshep, Ranjo Pass, the first Chola. Then Chola, Gorakshep and Ranjo Pass. Ranjo Pass. At that time we totally don't know कि वो सही बात है.
कितने टफ है, बिकॉज इफ इन सीजन यू कैन सी ईबीसी पे बहुत क्राउड रहता है. इट इज जस्ट राइट लाइक अ नॉर्मल, but it is tough. I saw a few Jordan girls who has been evacuated through air from इवैक्यूएट, EBC या हर समय in होता my है. front, and I saw almost 8 evacuation happened in a single day, which I spent in Gorakshep. करेक्ट. नो सो दैट्स व्हाई यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल. जब हम भी थे तो वहां पे पीपल हु मेक मिस्टेक्स ऑफ पोर एक्लेमेटाइजेशन, दे पे द प्राइस. यू कैन नॉट टेक चांसेस वहां पे. तो रहता ही है. Exactly, exactly. ग्रेट. From that till यहाँ तक तो था, and we moved without knowing a single penny, because हमारे पास एक मैप के अलावा कुछ भी नहीं था पासिस का. एंड जो दाई हमारा शेरपा था इज फ्रॉम नामचे बाजार ओनली, सो ही इज अ एक्सपर्ट. And अच्छा. every Sherpa that as we know already, the huge respect for या that particular society. नो डाउट. We start मजा आएगा दाई, बोले अच्छे से मजा आएगा, जम के मजा आएगा. मैंने ठीक है चलो दाई ने बता दिया, हम निकल गए. फिर लेटर ऑन जैसे ही हम चलना स्टार्ट करे नाइट जुमला में, मैंने सडनली मैंने यार लोग दिखना ही बंद हो गए. फिर थोड़ी देर यार दिख रहा है कि मैंने दूर दूर तक हमारा लोग कोई इंसान ही नहीं दिख रहा है उस रूट पे. हाँ. तो मैंने दाई ऐसा क्यों, दाई ये रूट भी आता है, ये शॉर्ट है, मैं इसलिए आपको लेके आया इधर से. बोले शॉर्ट है पर लोग क्यों नहीं दिख रहे. बोले बोले थोड़ा सा टफ पड़ता है इसके लिए. मैंने हाँ. भाई मेरे को जिस कंडीशन में दिख रहे हैं ना कि दूर दूर तक ना इंसान है, इंसान की जात है, तो इसलिए बहुत ही होगा. अरे मैंने दाई कोई नहीं, बस ये रहा करते हो ले जा रहे. तो जोंगला तक ही समझ में आ गया था, थिंग्स आर नॉट जस्ट लाइक इजी. कप ऑफ टू डूइंग 3 passes. तो मेंटली प्रिपेयर हो चुके थे. And since morning we started for the Chola Pass, and when we saw the 70 degrees steep incline, मैंने ये चढ़ना है, ये चढ़ना है. बोला हाँ भाई ये तो चढ़ना है. मैंने ठीक है, ऑप्शन तो है नहीं पीछे जाने का, आगे ही बढ़ना हाँ. है. So we started a 70 degree steep one of Chola Pass, and we just reached the glacier, and we started. And there is not a dedicated track available on that particular glacier. Dai राइट. just हमारे आगे चल रहा है, and just told us, बोले guys जहां मैं पैर रखूं आपको वहीं पैर रखना है, उसके अलावा कहीं नहीं रखना है. And hardly the thing is only and only 1 feet नैरो of है. space. ओहो. या और चलते जाना है आगे. मैंने ठीक है चला. एंड एक सर्टन लेवल जो फाइनल जो स्टेप था चोला पास चढ़ने का, उसके ऊपर भी वो 1 फीट से एक वहां पे इतना कम आ गया था कि आप पूरा आपका पैर नहीं रख सकते, आपको हाफ ही रखाएगा. एंड पकड़ के पूरे पहाड़ को पत्थर को आप चढ़ सकते हैं. तो वो चीज भी करा. मतलब ये चीज तो समझ में आया अमेजिंग. लाइफ में कि डेस्टिनेशन है वो मेहनत तो करवाती है. ऑब्वियसली. विद गॉड ग्रेस वी conquered the Chola Pass, and then again we saw the second part of Chola, which horrified me a lot. It is almost we took around 2 hours to come down from the राइट. pass, and we don't have any crampons. हाँ करेक्ट. हाँ इस चीज में क्रैम्पॉन्स तो Yeah, प्रिपेयर्ड था नहीं. yeah. We don't have crampons, and we are just going with the hiking shoes only. And करेक्ट. वो पूरा बर्फ था डाउन साइड पे, and we just hardly 10 or 12 steps I just took, and I slept there. And I'm just going. दी ट्रैकिंग पोज मेरे हाथ में है, जो मेरा पर्पेंडिकुलर रैक था वो स्लिप हो गया, तो मैंने उसको ऊपर कर लिया एंड जस्ट आई बैठ गया नेचर कॉल पोजीशन में, एंड जस्ट टू अवॉइड एनी डायरेक्ट हिट ऑफ माय. एंड ट्रैकिंग राइट. पोज से स्टार्ट कर था जर्नी. एंड जो ट्रैकर्स थे उस टाइम में कोइंसिडेंटली कुछ ट्रैकर्स आ रहे थे, दे सॉ मी कि मैं फिसल गया हूं, एंड दे कम इन दी पोजीशन टू रेस्क्यू मी. एंड ऑल अरे ऑफ वाह. सडन मैं क्या देख रहा हूँ, मेरा दाई शेरपा एक पैर इधर रख रहा है, एक पैर इधर रखता है, तीसरा मेरे ऊपर से कूद के ऊपर से निकल के आगे पहुंच गया मेरे से, वो पकड़ के यू बैक से साइड कर दिया. अरे वाह. बचा लिया उसने, मतलब है. एंड उस टाइम पे अमेजिंग. ऑलरेडी राइट. नहीं पकड़ में आता, मेरे को दिख रहा है बड़ा पत्थर, मैं तैयार हूँ कि मैं उससे जाके मैं टकरा. तैयार मेंटली हो रहा था. एंड सॉल ऑफ सडन वाला मैंने ठीक है, मैंने थोड़ी देर बैठने दो.
एंड वो इतने गंदा पार्ट था कि मैं एटलीस्ट वहां पे बैठ भी नहीं सकता था, ओके, क्योंकि लूज सॉइल थी, पत्थर जगह नहीं आ थी। रहे या हम्म, वी जस्ट मूव अहेड, कम डाउन एंड मैं लेट गया। मैंने दाई, मैंने ये तो एक ही, अभी दो और बचे। बोले दाई, बोले दे कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं दाई, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो एट दैट टाइम वी प्लान टू स्टे अ विलेज जो जस्ट चोला पास के बाद में आता है, एंड वी कंप्लीटेड द चोला पास अराउंड 11 AM ओनली। अब फिर वही ओके। वाली बात, बोले अब क्या करें बैठ के, खाना खा लिया 1 बजे। तो महेंद्र, महेंद्र जस्ट वन सेक, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आई थिंक विल क्लोज दिस, क्योंकि हमें पिस्टल आपका शूटिंग का पता करना है, दैट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर जो आप बता रहे थे। ऑन दैट नोट, ये कवर हुआ चोला पास, देन गोरख आगे बोकियो रोड, बोकियो जो से, एंड लेटर ऑन ये कंप्लीट ट्रैक करने के बाद जो मेरे पास था, ये वापस से लिम्का बुक के अंदर आया एज द लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड ट्रैक विद द प्रोस्थेटिक इन दैट इन वाओ। डेज। बेस्ट पार्ट इज दैट आई ये ट्रैक 20 दिन का है, जो मैंने 12 दिन में करा, एंड दैट इज द ओनली रीजन इट कम्स अंडर द लिम्का बुक। अपार्ट अमेजिंग है। Yeah, just for return आने के बाद I just start again practicing for cricket and badminton, and then again tingling start happening in my neck, and later on ओके, my master hand left hand start tingling and numbness started. So and one day my left original leg has been numbed down. At that time I ओके, मैंने ये अगर मैं इसको केयरलेस हो रहा हूँ और इट इज नॉट अप टू दैट मार्क, so then I told a doctor, again MRI happened. At that time, doctor told me for the surgery. If I wish to play again, then I have to do a surgery. मैंने okay, no issue, I will go with. It's part of my life. हाँ, Surgery चलता रहता है. But doctor, I asked doctor, मैंने what is the ratio of guarantee I can राइट, play with that surgery? Doctor was saying 0%. तो मैंने फिर करवाऊँ क्यों फुल मैं? है, मैं राइट, करवाऊँ, आप श्योरिटी देने के तैयार नहीं है, and was supposed to me go for the surgery. मैं इस में सबसे बड़ा बिल्कुल मैं ही होऊंगा फिर, तो I avoid हाँ, surgery. एंड एट दैट टाइम, मतलब इंसान को सबसे ज्यादा रेस्ट मिलता है लेटने के बाद, और मेरा लेटना ही मुश्किल हो गया था ड्यू टू सर गर्दन। वो लेटने पे राइट, इतना ज्यादा pain होने लग गया था तब, बहुत गंदी कंडीशन। जो सबसे बड़ा पॉइंट है रेस्ट करना, वही नहीं मिलता था। तो ठीक है, स्पेशलिस्ट को दिखाया, कुछ मेडिसिन चली, फिर थोड़ा आराम मिला, फिजियोथेरेपी करा के आराम पड़ा। अब स्पोर्ट्स तो बंद हो गया, स्पोर्ट्स तो करना है, कुछ ना कुछ तो स्पोर्ट्स करना ही है। So राइट, one day I returned for my office and I saw, I don't know people here are know about Mahu. Mahu is a Makkah Madinah of shooting. करेक्ट, Yeah, Makkah Madinah is I just want to say because army squad is based in Mahu. The entire person in army who selected in shooting events are posted in Mahu. There is one ट्रेनिंग, dedicated of shooting. So that is राइट, for army person, not for army brat nowadays. So I just came to and just passing from the highway, I saw the private shooting range board. मैंने बस क्या मन की चीज हो गई, अंदर चले गए तो ही आस्क्ड मी, बोले क्या करना है? मैंने ऐसी सी बात है सर, करना है। बोले इतना चार्ज है, ये है वो है। और बोले मास्टर एंड मैंने लेफ्ट है। मैंने पर मैं इससे कर नहीं सकता हूँ बिकॉज मेरे को, मैं इस गर्दन को इतना भी नहीं मोड़ सकता हूँ। अभी मैंने मोड़ा, इतने में मेरे को टिंगली हो गया है, इतने में हो चुका है। ओके, सो आई स्टार्टेड शूटिंग विद माय नॉन मास्टर हैंड राइट हैंड, जिसको मैंने लाइफ में कभी यूज नहीं करा। एंड राइट, सितंबर 18 में मैंने शूटिंग स्टार्ट करा, and I scored a medal in pistol shooting currently, and I scored the medal in normal category while participating in the वाह, normal in on MP level. And currently I am a state champion in shooting. And अभी post pandemic है। गजब यार, मानना पड़ेगा। तुम्हारा जेनेटिक बिल्डअप ही आई थिंक ये सब करा रहा है, बिकॉज अगर आपका मास्टर हैंड भी नहीं है और इतना लेट आपने शूटिंग स्टार्ट किया, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन यू नो हर चीज में आजकल तो है। तो दैट्स रियली अमेजिंग कि आपने इतना सब कुछ कैसे कर पाए, क्योंकि सोचना मुश्किल पड़ जाता है इतना सारा। नहीं ग्रेट। तो सर, अभी आगे फ्यूचर फ्यूचर का क्या प्लान है, होता शूटिंग में और क्या करना है अभी? actually मैं ड्यू टू सम आज वी नो वेरी वेल, आज अपने इंडिया में डर्टी पॉलिसी ऑलवेज देयर, बट ड्यू टू सम राइट, रीजंस नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज बीन back off their hands for the parachuting, and due to that only reason I
did not get the chance to play the national last year in 2019. Okay. So now currently I'm practicing, and just to the God grace, I just came to know again NRI has been with work of and efforts of so many people. NRI has been again bring their hand up in front and start again taking para in their umbrella. But Okay, those nice. we know very well 2020 कहाँ जा रहा है. All Hmm. sports events are closed. Let's see I know. what is going on, and the dream is to heard the national anthem while I'm playing. Post play. नहीं, आपने इतना सब कुछ अचीव किया, आई एम श्योर आपके ऊपर स्पेशल ब्लेसिंग्स है, बिकॉज नेशनल टीम में रिप्रेजेंट करना, उसके बाद इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, देन सडनली बैक टू शूटिंग. आई एम श्योर यू नो यू हैव गॉट अ lot of blessings ahead in front of you, not just from God, from well wishers family. You know, that's really amazing, because इतनी सारी चीजें एक किसी के लिए भी अचीव करना बहुत बड़ी बात होती है, और आपने तो इतना स्ट्रगल करके अपना पढ़ाई भी पूरा किया, नॉट जस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद एमबीए भी किया, साथ ही साथ इतनी एडवेंचर एक्टिविटीज. आई मीन दैट रिक्वायर्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ करेज, यू नो. सो महेंद्र, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई मीन पूरे टाइम आज मन कर रहा था सुनते ही रहो, बिकॉज देयर आर सो मेनी मारुति स्टोरीज एंड पर सो मेनी इंस्टेंसेस. टाइम ही शॉर्ट पड़ गया अपने को. मैंने आपके साथ इतनी सारी स्टोरीज है, आई एम श्योर क्या करें, कभी भी खत्म ना होने वाला इतना सर आपका एपिसोड. जो आपका राइटअप ही था, उसमें ही लग रहा था इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग टू बी लिसनिंग टू यू, महेंद्र. सो So much for my comments, sir. देखो, I will always I have respect for you, and so I will call always sir because you are average नहीं, sir. मैंने तुम्हें पहले भी इतनी बार बताया, बट आई लीव इट टू यू, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल. दैट्स सो नाइस, Yeah. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू, एंड यू नो टू योर फादर की उन्होंने इतना सर्व किया हमारे साथ, इतना कंट्री के लिए उन्होंने सब कुछ किया. सो मच थैंकफुल टू हिम, एंड हमारी तरफ से जरूर जय हिंद बोलिएगा. इट्स अ Surely. रियल ऑनर टू हैव listening to you and all such things. Thank you so much once again, Mahendra, and all the Thank best. you. Jai Hind. Jai Hind all. Jai Hind, bhai.